mainly for Mayapur for the youth devotees. But this year we are giving the opportunity for the youth also to join the Jagannath Puri also. So both the yatras are available. Either devotee wants to join in one yatra or both of the yatra. So it's optional. And as I mentioned in previous meeting also, uh, in previous meeting also that we have around we have made around arrangement for around 300 devotees in Jagannath Puri and 500 devotees in Mayapur. And we can also accommodate for both of the yatras. If someone wants to join, then 150 devotees uh, we can accommodate in that also. So from Puri to Mayapur, if the areas are joining, so they need not to book the tickets, train tickets from Puri to Mayapur. That will be arranged by us, and the cost of the train is also being added in the amount. तो जो भी एरियाज डायरेक्ट आते हैं पुरी में और मायापुर भी कंटिन्यू करते हैं, सो उनको मायापुर पुरी से मायापुर टिकट करने की खाली आवश्यकता नहीं है। वो टिकट्स हम लोग उनके लिए अरेंज करेंगे। एंड ऑल्सो द फर्दर एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टिल मायापुर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। सो लाइक दिस इज अ ब्रीफ। तो हम लोग 25 जनवरी को we have a train in the morning. So with two trains we have. One train is on 24th night, that is Purushottam, late night. And then other that we have there, we have 80 seats in that train. And 150 tickets we have in the second train, that is on the 25th January, morning 7:30 a.m. So these two trains we have for Jagannath Puri, and 25th is Sunday, sorry, Saturday, and 24th January is Friday. So we will adjust the devotees accordingly, and then we will reach. One train will reach on 26th January early morning. That is Purushottam, जो यहाँ से 24 को निकलेगी. And the other train will reach there around in the afternoon between 1 to 3 p.m. So these two trains are there. One is Nandankanan on 25th morning, and one is Purushottam on 24th night. So this is the way we are reaching there. So from 26th January, we have booked the accommodation there. और जो भी areas directly पुरी आ रहे हैं, so they need to get their tickets. So to come in Puri on 26th January, they can reach maybe in the morning or the afternoon. The sessions will be starting in the evening, and then the schedule will follow. तो ये एक स्टार्टिंग हमारा इस तरीके से रहेगा यात्रा का। और फिर उसके बाद we will stay in Jagannath Puri for 26th January, 27th January, 28th January, 29th January, and 30th January. So one day, 3 days we will dedicate in Jagannath Puri, and one day we will go out. Prabhuji suggested to Alarnath, and also he suggested for Chilka Lake. We will see the possibility there. But yeah, this is sure that we would go, I think, in Alarnath this year. So then we will also these will continue till 30th January, और 30 जनवरी को हम लोग की रात्रि की ट्रेन रहेंगी। तो जो डिवोटीज वापस जाएंगे दिल्ली और टू देयर डेस्टिनेशंस डूइंग ओनली जगन्नाथपुरी यात्रा, तो 30th जनवरी की रात को ही उनका ट्रेन है। और जो डिवोटीज कंटिन्यू करेंगे वहां से मायापुर, तो 30th जनवरी की ही रात को उनकी वहां से कोलकाता के लिए ट्रेन रहेगी। सो दिस इज लाइक अ ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ Jagannath Puri. We will also share more details as we get into finalize इन डिस्कशंस, जब उन चीज़ों का हम डिस्कशन करना चालू करेंगे, राइट, व्हाट एग्जैक्टली विल बी द शेड्यूल।
सो वी विल शेयर एवरीथिंग विद ऑल द एरिया लीडर्स ताकि आपको हर चीज इन्फॉर्म्ड रहे. ऑल्सो वी विल टेक योर सजेशंस इन दिस मीटिंग about what things we can do in this yatra. So then coming in the next, uh, I hope everyone is getting clear idea. If any confusion, you can please tell me on spot. So then coming on the Mayapur yatra. So हम लोग देखते हैं कि काफी लाइक हसल टसल रहता है इन दी ट्रेन फॉर द मायापुर. सो वी गेट एन आइडिया कि जो ट्रेन बहुत जनरल चलती हैं, है ना. सो उसमें ट्रेन हम टिकट्स कम से कम करें. और जो कुछ स्पेशल ट्रेनें हैं एक स्पेसिफिक हफ्ते में एक दिन दो दिन चलती हैं. सो पीपल आर नॉट वेल अवेयर ऑफ दैट. तो वो उस ट्रेन थोड़ी कम बिजी रहती हैं. एंड देर इज वन ट्रेन संपर्क क्रांति. दिस इज अ वेरी गुड ट्रेन जो जिसका टाइमिंग भी लगभग राजधानी के ही जैसा है. सो वी हैव बुक दैट ट्रेन संपर्क क्रांति ट्रेन. सो वी विल लीव फ्रॉम हेयर फ्रॉम दिल्ली 29th January in the evening that train is, and we will reach to Bardhaman on 30th January. तो हम लोग मायापुर शाम तक पहुंच जाएंगे 30th की इवनिंग तक. और जो डायरेक्ट जगन्नाथपुरी से मायापुर आ रहे हैं दे विल रीच ऑन 31st मॉर्निंग. बट द डिवोटीज हु आर कमिंग डायरेक्टली टू मायापुर दे आर रीचिंग 30th January इवनिंग. तो ये एक छोटा सा ट्विस्ट रहेगा. जस्ट ड्यू टू द ट्रेन हमको ऐसा करना पड़ा. तो 30 जनवरी की शाम तक जो डिवोटीज डायरेक्ट आ रहे हैं वो आ सकते हैं. मे बी जो हम ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं वो भी. और जो नहीं ले रहे हैं डायरेक्टली आप लोग रीच कर रहे हैं अपने अपने डेस्टिनेशन से, तो वो 30 जनवरी को आप अराइवल आपका हो सकता है. सो या सो दिस इज द थिंग, है ना. 30 जनवरी को हम लोग पहुंचेंगे. सो सिंगल ट्रेन वी हैव बुक्ड फॉर द डिवोटीज दिल्ली एनसीआर एंड नियर बाय. और जो डिवोटीज लखनऊ बरेली अयोध्या, है ना. सर प्रभु आप सुन रहे हैं ना. दिस इज फॉर यू. हाँ, यस सो प्रभु जी। जो डिवोटीज लखनऊ अयोध्या बरेली रुद्रपुर रामपुर इस बेल्ट से आते हैं तो उनके लिए हमने एक डिफरेंट ट्रेन की है. तो जो कि जिसका हॉल्ट मुरादाबाद भी है, जिसका हॉल्ट रामपुर भी है और बरेली भी है लखनऊ भी है. सो आप अपने एरियाज के डिवोटीज को उस ट्रेन से ले जा सकते हैं. सो 250 seats we have booked in the Sampark Kranti in single train only, and around 80 to 100 seats we have booked in the other train. लगभग तो 350 350 के बीच में हमने ट्रेन बुक किया है for directly reaching Mayapur. And then devotees are reaching on 30th January, 29th January they will leave as I mentioned. अब 30 जनवरी को वहां पहुंचेंगे और 31 जनवरी से हमारी यात्रा शुरू होगी. So the devotees we planned in such a way कि one introduction session we generally have about the धाम, how to see the धाम अपराध. तो जो एक introductory session होता है, so that we will keep for the devotees coming directly to Mayapur in the morning, 31st morning. And we are also assuming the devotees who are continuing from Jagannath Puri, उनके लिए वो session हो चुका होगा, the introduction session. So we will not, because they will reach little afternoon, late in the morning. So that session they can skip. Um, तो 31st January से यात्रा शुरू होगी मायापुर की. एंड 31st January वी विल बी देयर. 1st February, 2nd February, 3rd February, and 4th February we have checkout. So devotees can depart to their destinations. So like this is a schedule for Mayapur and Jagannath Puri. So for Mayapur, last year we did half of the parikrama. Major part we had covered. So the island जो भी द्वीप बचे थे last year. So I think 4 द्वीप were left. So वो द्वीप हम लोग इस बार कवर करेंगे इन 4 दिनों में.
तो इस तरीके से मायापुर और पुरी का शेड्यूल है, ट्रेन्स का एडजस्टमेंट्स, कोऑर्डिनेशन है। तो आई होप आप सबको एक ओवरऑल क्लैरिटी मिल गया होगा। So detail we will discuss, and I will just now present one that I have worked, जो मैंने थोड़ा बहुत अभी प्रयास किया है। एंड सो हेयर आई जस्ट मेंशन जो कॉस्टिंग हमको आती है ना, हर एक चीज की, प्रसादम की, uh, मायापुर में कितना आएगा, पुरी में कितना आएगा। सो दीज आर द डिटेल्स। So, but the thing is, this this is for the last year donation amounts we had kept, and this is for this year. So for the so this is like the amounts. ये ऐसे amounts हैं जो वर्कआउट किए हैं from Mayapur Namashipu. We will be leaving on 4th February, है ना? 4th February we are the last day. So in the evening we have trains. So 4th February is the last date. और 4 फरवरी, ये डेट्स इसलिए रखे गए थे, इसका भी एक कारण है, एंड वी डिस्कस इन द कोर कमेटी बिकॉज फ्रॉम 6th एनआईडीसी मीटिंग इज देयर, जिसमें सभी सीनियर्स को जाना था, और ये प्रयागराज में है। तो इस वजह से ही हमने इस यात्रा को रखा। और ये जस्ट सिमिलर है जैसे हमने लास्ट ईयर किया था, बिफोर नित्यानंद त्रयोदशी वी केम कम हियर, है ना। तो नित्यानंद चौदशी भी आई थिंक बहुत पास में ही है। इट इज ऑन 10th, है ना। और तो इसलिए इस तरीके से रखा गया था कि नित्यानंद त्रयोदशी से पहले हम लोग अपने अपने टेम्पल्स पहुंच जाएं। और बिकॉज वहाँ मायापुर में भी फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है, एंड वी डोंट गेट देयर एकोमोडेशन, है ना, आफ्टर द नित्यानंद त्रयोदशी द फेस्टिवल स्टार्ट्स देयर। सो सेम पैटर्न वी हैव केप्ट दिस ईयर कि और क्योंकि एनआईडीसी मीटिंग भी बीच में पड़ गया था, तो हमको थोड़ा सा 3-4 दिन पहले और शिफ्ट करना पड़ा इस यात्रा को। सो ये डोनेशन अमाउंट्स हैं, है ना, आप लोग देख सकते हैं। दिस इज फॉर द लास्ट ईयर एंड दिस इज फॉर दिस ईयर। वी हैव इंक्रीज नंबर ऑफ डेज इन जगन्नाथपुरी, सो little bit explanation is there. You can just see one time on screen. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो आई होप आप लोग को आप लोगों ने ओवरऑल देख लिया होगा। सो आई विल ट्राई टू एडजस्ट द रेट्स, अमाउंट्स, जो भी हम कुछ कट डाउन कर सकते हैं। सो द फाइनल वी विल रिलीज ऑन अ पोस्टर वेरी सून।
Any devotee want to say something on this? Till now we have discussed. Tadapati Charan Prabhu. हरे कृष्णा। प्रभु, ये 30 तारीख का एकोमोडेशन मॉर्निंग से होगा ना मायापुर में? Yes, Prabhu. मतलब जो उनका टाइमिंग होता है, हम्म। सो अकॉर्डिंग टू दैट टाइमिंग, आठ शायद 8-9 बजे से शुरू कर देते हैं ना। ओके। में और मायापुर में जो एकोमोडेशन है वो विद इन कैंपस होगा, अंदर ही पूरा? विद इन द कैंपस एंड इन जगन्नाथपुरी गौड़िया मठ प्लस नियर बाय एरियाज। ठीक, थैंक तो मायापुर में भी मैं बता देता हूँ, वी हैव बुक्ड इन गीता भवन डॉर्मेट्री फॉर 160 devotees. We have booked in Namhatta rooms for 160 devotees. We have booked in Gada Bhavan dormitory and some rooms, and we have booked in Chakra Bhavan. They are rooms, but they are like dormitories only. So अभी तक ये accommodation मिला है हमको, और शायद थोड़ा और बुक करना है हमको अभी। यस, आईफोन प्रो जी। हाँ, हरे कृष्णा। ये हरे इस कृष्ण बार प्रो जी। बोथ डोनेशन अमाउंट फॉर बोथ ये घट गया है पिछली बार के कंपैरिजन में। 2024 में ज्यादा था, 25 में कम है। तो अच्छा है ये। हम्म। ये तो बहुत बड़ी कृपा है आपकी। हम्म, थोड़ा कम हो गया है हाँ। तो बहुत यात्राज हम लोग इनकरेज कर रहे हैं। आई विल ट्राई कि और भी हम इसको कट डाउन कर सकें। तो आप लोग प्रयास करिए अपने डिवोटीज को बहुत यात्राज में लाने के लिए। हम्म। 150 सीट्स भी है तो इट्स अ बिग नंबर ना। मतलब जो पूरी आ रहे हैं, मान लीजिए आधे कंटिन्यू ही हो रहे हैं। जी ब्रो जी। सो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर अरुणोदय कीर्तन ब्रो। आवाज हेलो। आ रही है? हाँ आ रही है। मैं बोल रहा था कि जो ये डिटेल्स है ना ट्रेन की, और जो डिटेल्स अभी आप बता रहे थे, तो वो अगर डॉक्यूमेंट फॉर्म में अगर प्रेजेंट हो जाए ना तो हम लोग, वो सही रहेगा अभी जो आपने प्रेजेंट किया। डॉक्यूमेंट फॉर्म में आज भेज देंगे प्रो जी। अभी हाँ। मैं रेडीमेड, मैंने जो मेरे माइंड में था जस्ट डिक्टेटेड, बट या हम लोग आज राम स्वरूप से रिक्वेस्ट है, आज शाम तक आपको भेज देंगे। जो भी डिटेल्स हम मैंने अभी आपको डिक्टेट की हैं, तो सभी डिटेल हम एक डॉक्यूमेंट में डाल के आप सबको शेयर कर देंगे। देखिए, मेन जो स्टूडेंट्स को जो इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं अभी के लिए, वो हाँ। ये होते हैं कि कितने बजे जाते हैं, है ना, एग्जैक्ट कितने तारीख को कितने बजे निकल रहे हैं, और कितने तारीख को कितने बजे पहुंच रहे हैं, और ट्रेन की क्या नाम है, नंबर है ना। तो ये जो है आने जाने का, ताकि वो छुट्टी लेना है, प्लान करना है, वो उनको मिल सके। उसमें आगे जाके नंबर ऑफ डेज टोटल उनके कितने दिन का ट्रिप हो रहा है, तो वो चीज़ अगर हम उनको एक एक्सेल में हर पूरा परमुटेशन कम्बिनेशन लगा के, कि अगर सिंगल जा रहा है या डबल जा रहा है या ऐसे डायरेक्ट मायापुर जा रहे हैं, तो इतना दिन का कितने बजे का ट्रेन है, तो वो जो है बहुत अच्छा रहेगा, जो ठीक आपने है वो। बताया भी था ना, तो दैट विल बी नाइस। तो एक एक्सेल सीट में पीडीएफ जनरेट करके हम भेज दें, जिसमें उसका क्लियर आइडिया मिल जाए हर चीज का। ठीक है। इसमें ना बहुत कंफ्यूजन रहता है, मुझे भी एज ए एरिया लीडर कंफ्यूज रहता है, बच्चे पूछते हैं तो हर समय रिकॉल नहीं हो पाता। वो रहेगा पीडीएफ तो आराम से हर कोई समझ जाएगा। यस पूरी। और ये पूछ रहा था कि बोथ वाले में विदाउट ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे इसमें तो डिक्रीज हो गया, विद ट्रांसपोर्टेशन विदाउट ट्रांसपोर्टेशन में इंक्रीज हो रहा है अमाउंट। इसमें एक रीजन ये भी है ब्रो जी। लास्ट ईयर हमने क्या किया था
कि पुरी से मायापुर जो डिवोटीज जाते हैं ना, तो वो विदाउट ट्रांसपोर्टेशन ही हमने कंसिडर कर लिया था। बट दे ऑलवेज हैव, उनको क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन फिर भी चाहिए ही होता है। तो फिर हमने इस बार उसको इंक्लूड कर लिया है। मैंने बताया भी था शुरू में ही कि जो पुरी से मायापुर जा रहे हैं, चाहे वो विदाउट ट्रांसपोर्टेशन है, पर पुरी से मायापुर का ट्रांसपोर्टेशन वी विल टेक केयर। तो वो जो अमाउंट लास्ट ईयर हमने नहीं डाला था, तो वो अमाउंट हमने इस बार डाल दिया है। आई थिंक इसलिए वो डिफरेंस आ रहा है। और दूसरा, क्योंकि पूरी हम लोग के जो टोटल नंबर ऑफ डेज हैं वो लगभग इक्वल हैं लास्ट ईयर के, क्योंकि पुरी में कम था, मायापुर में ज्यादा था। तो इस बार पुरी में बढ़ गया है, मायापुर में कम हो गया है। तो वो लगभग नंबर ऑफ डेज इक्वल है, 10 डेज। सो इसलिए वो खाली आपको थोड़ा मायापुर सा। में कितना दिन का था? और मायापुर। मायापुर में 6 दिन का था, और पुरी में 3 दिन का अच्छा, था, 4 दिन। मतलब स्टे, अच्छा। स्टे, नाइट स्टे। हम्म। तो 3 3 9, और इस बार 4 दिन पुरी में है, और 3 दिन है मतलब। और इधर शायद 4 दिन इधर भी है, तो 8 दिन है। कुल लग रहा है कि कम हो सकता है हमारा कॉस्ट्यूम थोड़ा। हाँ, थोड़ा विल वर्क आउट बोथ में कि और कितना कम हो जाए, बट बहुत ज्यादा नहीं होगा, लाइक 100 200 का डिफरेंस। आई थिंक वी कैन वर्क, है ना? एनीथिंग एल्स? तो हम लोग और भी अभी, मैं आई वांट टू शेयर एवरीथिंग पर्सनली ऑल्सो, है ना? टू कम्युनिकेट एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग, एंड ऑल्सो टू टेक योर ऑल एवरीवन्स इनपुट्स इन दिस यात्रा, बिकॉज दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ डिफरेंट यात्रास, है ना? एक यात्रा खाली नहीं है। जैसे समुद्र में अलग अलग नदियां आती हैं, तो वैसे ही मैं तो ऐसे ही सोच रहा हूँ इस बार की सबकी अपनी यात्रा है, और एक यात्रा में हम मर्ज हो रहे हैं। तो आप सबका कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा, not only bringing the devotees, that is the main thing, but also to have some uh, kar seva, you can say, है ना, some volunteer service in that also। हो सकता है कोई कम छोटा जिम्मेदारी हो, किसी का बड़ा हो, but everyone should be engaged, है ना, in this yatra। Everyone shall get some part of service in this yatra, from big areas to small areas, medium areas, every area, है ना? एंड सो दिस इज आवर इंटेंशन। और जितने भी भक्तों के इनपुट्स हैं वो पहले ही हम ले लें, और जो हम लोग भी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं वो आप सबको कम्युनिकेट करते जाएं। तो वी विल ट्राई टू शेयर द प्रोग्रेस इन एवरी मीटिंग्स। सो रिसेंटली आई विजिट टू जगन्नाथपुरी, एंड Sundar Gopal ji was also there. So some of the bookings I saw in Jagannath Puri, है ना? So that things we will share in the next meeting. So एक ये चीज था। और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में we will start, I think from 5th December, on Thursday, we will be starting the registrations, and it will be continuing till January. Yeah. तो अभी आप सबने देखा होगा कि वी हैव रिलीज सम ऑफ द पोस्टर्स, सम वीडियोस आल्सो, और कोस्टॉक में लगातार ये लोग कुछ कुछ ग्लिम्पसेस डाल रहे हैं ऑफ द लास्ट यात्रास ऑफ मायापुर एंड पुरी। तो वो धीरे धीरे वी आर ट्राइंग टू मेक वन माहौल। तो जो भी आप लोग की अब क्लासेस होती हैं, है ना, सो यू कैन शो टू द डिवोटीज, अवेयर देम अबाउट दिस यात्रा, and then once the registration start, so devotees may get ready, है ना, to do the registrations। so this is the purpose कि हम लोगों ने बहुत जल्दी नहीं खोल दिया है registrations। You can also share the graphics things that we are sharing in the groups, है ना? तो डाउन द लाइन आप लोग भी अपने अपने ग्रुप्स में उन सब चीजों को शेयर करने का प्रयास करें,
और ताकि वो एक माहौल बने. एंड देन एज सुन एज द रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, devotees get ready, to do the registrations. So this was the thing, and yeah, everything will be shared in the group today. अब उसके बाद so just here are some of the things that I have mentioned. अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, है ना, जो हम लोग उसमें देख सकते हैं. तो सर्विसेज आप लोग ले सकते हैं, खुद चॉइस कर सकते हैं. और देन देर आर बी सीकिंग कि इस साल हम लोग यात्रा में हर दिन एटलीस्ट एक कोई ड्रामा करें, और वो ड्रामा प्रिपेयर्ड हो. और तो ड्रामाज अलग अलग एरियाज एक एक दिन की जिम्मेदारी ले सकते हैं. सम इन मायापुर, सम इन जगन्नाथपुरी. और साथ में हम आप सबके सजेशंस भी चाहिए related to topics, है ना. What topics we can keep, what activities we can have in this yatra, है ना. How to make the experience of the youth a good experience in this yatra. वो चाहे कुछ छोटी छोटी चीजें भी हम लोग हों, सटल एस्पेक्ट्स भी होते हैं कुछ यात्राज में, तो वो हम क्या मेंशन कर सकते हैं. What can be the menus if you have some suggestion, what speakers, है ना. और we want to keep the focus on which speakers आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं. And then we can also have the pledging mm, for this yatra. So this is the thing, है ना. तो uh, if you are ready, then I can start with this. Mm. तो ये लास्ट ईयर का है, मतलब इस साल सेवाओं के लिए है. तो आप लोग को मैं एक बार जस्ट ब्रीफ कर देता हूँ कि ये जिम्मेदारियां हैं, है ना. तो आप लोग देख सकते हैं, और मैं तो चाहूंगा खुद आप लोग बोलें अब कि मैं ये जिम्मेदारी ले सकता हूँ या मैं ये जिम्मेदारी ले सकता हूँ, है ना. और अगर आपको कुछ समय भी चाहिए तो बता सकते हैं, बट मुझे लगता है वी आर ऑल इतना तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग रखते ही हैं कि हाँ, मैं ये जिम्मेदारी देख सकता हूँ. तो है ना, मे बी कोई पुरी में देखें, कोई मायापुर में देखें, बट आई रिक्वेस्ट कि यू स्पीक समथिंग नाउ. सो वी हैव ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन, तो अलॉटमेंट ऑफ ट्रेन टिकट्स करना, प्रिंटिंग ऑफ लिस्ट करना, टीटीज के साथ कोऑर्डिनेशन करना, सब ओरिजिनल टिकट्स रखना. तो आप सबको पता है ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन देखना. देन लोकल ट्रांसपोर्टेशन, मेनली द बसेस, है ना, to arrange, to book taxis for senior devotees, ferry tickets, है ना, if boat is required. So that is comes under local transportation. And then train prasadam. Uh, train prasadam एक अलग ही टास्क होता है. So one devotee is the coordinator. Maybe he is in the train or not in the train, but he is the one person who is in charge for all the trains, है ना. So this we keep one person for both Puri and Mayapur. So he make one coordinator in each train and book the prasadam on the stations, and then he coordinate overall. Then DTs का क्या है? Jagannath ji and Gaur Nitai accompany us. So for them
they take cares. And then accommodation in Puri, Mayapur, uh, allocation, informing the areas, allocations का prints लेना, सबको व्यवस्थित करवाना, है ना, ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट्स देखना. So this comes under accommodation. Then inventory, a big seva. Uh, so inventory and setup, a big task. आप सब खैर अवेयर हैं. सो सब उसका लॉजिस्टिक्स, सब सामान का देखना, है ना, एंड सेटअप को देखना. और जो भी क्लास कोऑर्डिनेटर्स हैं, ऑफ कोर्स दे विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद दिस इन्वेंटरी टीम एंड डूइंग द नेसेसरी सेटअप. एंड देन मृदंगा प्लेयर्स, अगर आपके कोई एरियाज में हैं तो, या आप भी बजाना चाहते हैं तो यू कैन टेल. कीर्तन, वी हैव street kirtans, we have kirtans in the classes, we have welcome kirtans. So अलग अलग devotees को मौका मिले. We have many good singers in our area leaders forum only. So to give chance to different devotees and coordinate for that. So kirtan coordination is there. Then healthcare and first aid. है ना? So this is also sometimes a very in this Mayapur annual yatra. It's a like quite यू कैन से बड़ा सेवा रहता है ये, है ना. छोटे मोटे कैंप्स में इसका उतना आवश्यकता नहीं पड़ता है. बट या इन पूरी मायापुर इट रिक्वायर्स एफर्ट्स. सो हैव सम डॉक्टर्स विद यू, है ना, और हैव सम रेगुलर मेडिसिन्स विद यू. हैव बी इन कांटेक्ट विद द लोकल हॉस्पिटल. और जो भी डिवोटीज बीमार पड़ते हैं, सो उनके साथ उनको वहाँ उनका इलाज करवाना, है ना. Of course, taking help of the local, his local area devotees also. And then accounts registration. So I think this will be taken care by Ram Group. So brahmachari coordination, uh, देखना, class coordinations देखना, ना. तो discipline in charge we keep, ना. So he is responsible for like coordinating with the different coordinators of the areas. Yeah? And for the attendance also, the discipline in charge is very much required, है ना. Announcements करना. So this is the task of the discipline and charge. And then parents care. हमारे मधुस्मिता पुरुष को पारंपरिक तौर से कर रहे हैं. तो आप और भी डिवोटीज, अगर नए डिवोटीज इस चीज को देखना चाहें, बेसिकली दिस इज इन द जगन्नाथपुरी ओनली. तो पेरेंट्स को देखना ब्रह्मचारी के. एंड देन security, crowd control to look after, mainly when there is queues, or mainly there is a when we go out on the road. So वहां पे देखना, या फिर जहाँ पे हम समुद्र स्नान कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, वहां मेनली देखना. तो सिक्योरिटी एंड क्राउड कंट्रोल बोथ. देन इज प्रसादम कुकिंग मैनेजमेंट इन पुरी एंड मायापुर बोथ. एंड देन ड्रामा, है ना. एंड देन प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन देखना. uh, और फिर सीनियर डिवोटीज के साथ मीटिंग कोऑर्डिनेट करना. एंड ऑल्सो इफ समवन वांट्स टू टेक पार्ट इन फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, to look this. So these are the different services. Now I request devotees. One devotee has, Vilas Nam too has suggested that he can look in train transportation. Okay. समर्पित गौरव. अ, हमारे रूट का मैं देख सकता हूँ, ट्रेन ट्रांसपोर्ट हमारा अलग रूट से जाएगा ना, बरेली वाले रास्ते से. तो इनका जो भी है टीटी से डीलिंग और जो भी टिकट्स है, सीटिंग ट्रेन का मैं देख सकता तो समर्पित गौरव, विलास टू कैन कोऑर्डिनेट, है ना, विद यू. ठीक है ना. हूँ. हाँ, यस. ऑलराइट, थैंक यू. और कोई कोई सेवा लेना चाहेंगे? आदि को अपनी निमाई प्रूफ.
पर्सनल मीटिंग कोऑर्डिनेशन। ओके। एनीवन एल्स और डिवोटीज? अविनाश माधव, आपका हाथ खड़ा है। अ, मधुस्मिता को आपने मैसेज किया है ये? ओके। सो मधुस्मिता wants to continue the parents care सेवा। Let the चरण प्रभु। आप सुन पा रहे हैं? Okay. So I think now devotees wants some more time to decide, है ना? तो अभी we have time. राधापति चरण प्रभु is there, सर प्रभु is there, है ना? अद्भुत नरसिंह प्रभु, द्वारकानाथ ऋषिकेश प्रभु. So you all can decide. अरुणोदय कीर्तन प्रभु. Okay, security. तो हरे अभी हमारे हरे कृष्णा। सॉरी ओ ब्रह्मचारी कोऑर्डिनेशन में क्या करना होगा प्रभु? ब्रह्मचारीज के लिए क्लास ऑर्गेनाइज करना, है ना? और ब्रह्मचारीज को कोई इंफॉर्मेशन है तो वो देना, उनका एकोमोडेशन देखना। तो जितना भी चीज ब्रह्मचारी से रिलेटेड होता है वो सब करना। मेनली एकोमोडेशन उन लोगों को थोड़ा रहता है, उनको हम उनका एकोमोडेशन कोऑर्डिनेटर को ही दे देते हैं। सो ही एलोकेट एंड देन टू हैव क्लासेस फॉर देम, और उनका एक ग्रुप बना के उनको शेड्यूल सूचना कर लेते हैं। भाई क्लास कोऑर्डिनेटर का जो टास्क रहता है वो उसका क्लास के लिए होता है, ब्रह्मचारी का क्लास के लिए होता है। बाकी आ, हमारा और ब्रह्मचारी के बीच का जो इंटरसेक्शन होता है वो ब्रह्मचारी कोऑर्डिनेटर होता है। तो आदिगम निमाई पे आप वो भी देख सकते हो, है ना? बिकॉज पर्सनल मीटिंग आई थिंक वी हैव ऑलरेडी देयर असिस्टेंट्स, सो इफ यू वांट टू सी यू कैन सी दैट। हाँ ये भी लाइक कर कर पाऊंगा प्रभु, ट्राई करता हूँ। ब्रह्मचारी वाला बता दीजिएगा अमाउंट। थैंक थैंक यू। सो ठीक है, ये सेवाएं हैं। वी हैव स्टार्टेड द एलोकेशन। तो बाकी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट मीटिंग्स आल्सो। हरे कृष्णा। हाँ, तो मैं ये लिस्ट ऑफ सर्विस भी भेज दूंगा ग्रुप में, है ना? तो आप लोग थोड़ा तसल्ली से और देख सकते हैं, जिन्होंने बताया भी है या नहीं भी बताया है। सो यू कैन सी, टेक योर टाइम, अ वीक टाइम, एंड इन द नेक्स्ट मीटिंग वी कैन अगेन टेक योर
inputs. ठीक है? So now there are some more things, है ना? If you are comfortable now, so you can please tell if your areas can participate in the drama. तो अलग अलग एरियाज हैं, सब अपनी अपनी भागीदारी करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग एक एक दिन जिम्मेदारी एक एक ड्रामा की एटलीस्ट लें। या वी विल असिस्ट यू इन द स्क्रिप्ट, है ना? विल द ओवरऑल ड्रामा कोऑर्डिनेटर will be helping you in the script, will be helping you in the costumes, so that will be taken care by us, है ना? So उसमें आपको हम असिस्ट करेंगे, बट द कैरेक्टर्स, द रिहर्सल्स, दैट हैव्स टू बी टेकन केयर बाय योर एरिया। अरुणोदय कीर्तन ब्रू और विलास नाम टू वांट टू से। तो ड्रामा एक कर सकते हैं दिल्ली के लिए होते ओके, सैंपल पीछे। और कोई? थैंक यू विलास नाम टू। So we have around 8-9 dramas we can have, है ना? हर दिन भी अगर एक ड्रामा करना है तो आराम से हम लोग 8 ड्रामा कर सकते हैं। तो अभी एक हुआ है। दो, जैसे मायापुर और जगन्नाथपुरी में दोनों में एक एक कर सकते हैं ना दिल्ली सैंपल। हाँ ठीक है, तो 2 आपके हो गए ना? ऐसे ही सब एरिया से ले सकते हैं, क्योंकि पुरी में जो जाएंगे वो तो अलग रहेगा, मायापुर अलग। हम्म, टोटल बता रहे हैं ना हम 8-9 ये टोटल तो 2 हो गए हैं आपके। और कोई एरिया? अरविंद आसमान से पूछ रहे हैं। प्रभु ये लिस्ट ऑफ ड्रामाज मिल जाएगा क्या मायापुर का? मैं 2 दिन में पूछ के बताता हूँ डिवोटीज से। मायापुर का ड्रामा का लिस्ट मिल जाएगा। प्रो जी, लिस्ट दिस इज अ थिंग हमको करना है अभी। मतलब मैं आपको 2-3 दिन में भी बता ही नहीं पाऊंगा। इट नीड्स मी अराउंड 8-10 days टू टेल यू व्हाट ड्रामास, बिकॉज द टॉपिक्स क्या हम रखने वाले हैं। तो थोड़ा ड्रामास पे भी काम करना है। बट या इफ यू आर इंटरेस्टेड, सो वी विल लाइक कोऑर्डिनेट विद योर एरिया कि हाँ दिस इज द ड्रामा, दिस इज द स्क्रिप्ट, है ना? तो उस पे हम लोग काम कर सकते हैं। पर इट विल बी गुड अगर आप राधापति चरण को इंटरेस्टेड है तो वी कैन एडजस्ट लाइक ना। पटना का आप रख सकते हो मायापुर के लिए ड्रामा। ओके, मायापुर भक्त सिंह मायापुर प्रभु, मैं दवाई लेने थैंक। बुला, कर लो फिर चलते हैं। प्रभु जी मधुस्मिता ब्रो, गाड़ी में जगह तो बोल रहे हैं, मानी अवतार वो है। कौन सी दवाई है प्रभु? मानी अवतार बोल रहे हैं, प्रभु जी गाड़ी में जगह तो है नहीं है प्रभु, नहीं है, मैंने पूछा था। क्या? गाड़ी में जगह नहीं है। ओके। मधुस्मिता ब्रो, आप म्यूट अनम्यूट है ब्रो। अच्छा, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आपकी गला खराब है। क्या प्रभु, मोनव्रत रख लिए क्या? नहीं, उनका गला खराब है। कार्तिक तो चला गया। वो बोल रहे हैं कि म्यूट नहीं हो रहा है, शायद वो ये बोल रहे हैं। पता नहीं, एक सेकंड। ऐसे ऐसे कुछ हाथ दिखा के बोल रहे हैं, दिखा दूंगा नहीं तो अनम्यूट कर दो, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। मधुस्मिता ब्रो बोल पा रहे हैं? हरे कृष्णा। लैपटॉप खराब है सॉरी, गला खराब नहीं है, लैपटॉप खराब है। अनादिकेश ब्रो, मुझे एरिया का तो पता नहीं, बट मैं अकेले कर सकता हूँ, मतलब साथ में मिलकर आप मुझे ले सकते हो ड्रामा। प्रभु मेरे साइड आ जाइएगा। प्रभु इनको उसमें डाल थोड़ा दीजिए वो मेरे वाले।
और अच्छा रोल ड्रामा चाहिए हो मुझे जाएगा वो। थोड़ा, वो वाला रोल चाहिए और हो बड़ा। जाएगा, ड्रामे से और ही हो जाएगा वो कुछ। गुंडागर्दी वाला थोड़ा चाहिए जी मुझे ड्रामे में रोल, तो मुझे आप ले सकते हैं जहां भी गुंडा वाला रोल है ना, आप लोग मुझे दे सकते हो। पंखा रखें हम्म। वहां पे, ना रखें स्टैंड फैन? नहीं पंखा वैसे ही मैं उड़ जाऊंगा वैसे ही, बिना गुंडा पंखे के। गुंडा इनको पीटेगा, वो वाला रोल जिसमें पिटाई खानी हो। हाँ, तो क्या है, भक्तों के हाथ से पिटने का सही है। प्रभु अगर ब्रह्मचारी वाला सेपरेट नहीं हो रहा है तो पटना वाले में इनको डाल दीजिए, इनको मेन रोल दे देंगे। आई एम सीरियसली टेलिंग। कहीं भी फिट कर दो, मैं कहीं भी फिट हो जाऊंगा। हाँ तो पटना वाले में लिख दो ब्रो, अगर ब्रह्मचारी वाला ड्रामा नहीं हो रहा है तो। ब्रह्मचारी वाला हो रहा होगा ना, उसमें भी डाल सकते हैं ठीक है, मुझे। हम एक ब्रह्मचारी का करेंगे, उसमें भी कर लेंगे, आपके साथ भी कर लेंगे, बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं, 2-3 में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, आदिगम निमाय प्रभु, आप एक ड्रामा भी कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। हम्म, हम्म। अरे उसमें मेरे को नहीं है ज्यादा आइडिया ड्रामा में। अरे ड्रामा हम करेंगे, आप बस कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है। मेरे को कोई छोटा सा रोल दे दे, कोऑर्डिनेट लास्ट ईयर तो। भी हमने किया था, उसके लास्ट ईयर भी किया था, एक एक ड्रामा तो हम करते हैं हर साल। ठीक है। सो ओके वी अविनाश माधापू, आप भी एक लेना चाहेंगे अपने एरिया के लिए? मैं भी 2-3 दिन में डिस्कस करके बता बता पाऊंगा। ठीक है प्रभु जी। सो ये अभी तक हमारे फाइनल है अराउंड 5 ड्रामास, 2 फ्रॉम दिल्ली टेम्पल, 1 फ्रॉम पटना, 1 फ्रॉम लखनऊ एंड 1 फॉर ब्रह्मचारी। सो मधुस्मिता प्रभु, आपका ये जो है, सो मायापुर में आप करना चाहेंगे या फिर पुरी में? मायापुर। तो ब्रह्मचारी का हमको पुरी में ही रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। सो 3 dramas we have in Mayapur till now and 2 in Puri. No? And more devotees can tell their interest in a week. So अगर हम आगे बढ़े तो just whatever you have in your mind for this yatra, है ना, you can tell us, uh, or you want to think, you can think. The next week we will continue this discussion, जो भी हम लोग और चीजें शेयर करेंगे, है ना, और with a registration panel everything. So we will continue our discussion. We will have some time the next week also. So you can tell anything you have in your mind. We will write down your points. हाँ, हरे कृष्ण जय देखो। Yes, Rosie. तो लास्ट टाइम है तो प्रसादम का थोड़ा कंसर्न था ब्रो बहुत। कहाँ पे? गीता भवन में हाँ हाँ। चपातीज, मतलब चपाती नहीं थी वो। ओके। हमने हमने सुलभ किचन में किया था ना, तो लास्ट टू लास्ट हाँ बहुत अच्छा हाँ। प्रसाद, क्वालिटी भी था, चपाती भी अच्छी थी, और दिक्कत भी नहीं हुआ ज्यादा। सुलभ किचन में करने का फायदा ये भी है कि वो तुरंत भक्त वहां से निकल के उसमें घुस जाएंगे ऑडिटोरियम से, है ना। तो हम्म। दोनों दोनों प्रसादम हॉल का अगर क्वालिटी का अगर मतलब थोड़ा कंपेयर करें, तो बाकी ड्यूटी का भी कुछ हो सकता है। बाकी मुझे तो लगा कि सुलभ किचन का प्रसादम ज्यादा बेटर था। नहीं, यू आर करेक्ट रोजी, है हम्म, ना। हम्म, तो सुलभ किचन हम लोग इस बार प्रायोरिटी रखेंगे। पर उनका लास्ट ईयर जस्ट मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि वो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, सुलभ किचन बहुत हाई रेट कोट कर रहे थे, है ना, 400 रुपये से ऊपर पर डे। तो इस और गीता भवन वाले ने हमको बहुत आश्वासन दे दिया था कि वो लोग बहुत अच्छा करेंगे, है ना, और रेट भी अच्छा बता रहे थे, मतलब हमारे बजट में। तो इसलिए हमने जस्ट किया, बट हमको भी उतना ठीक लगा नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर एक और चीज था, मतलब ये तो है कि उतना अच्छा एक्सपीरियंस ना मिला हो। लास्ट ईयर हम लोग काफी दिन भी रुक रहे थे वहां पे ना, सो द मेन्यू गॉट समटाइम्स रिपीटेड, तो वो भी थोड़ा सा बोरिंग भक्तों को आई थिंक लग रहा था। और इस बार दिन भी थोड़े कम है,
तो उतना वो मेन्यू रिपीट नहीं होगा। बट हाँ, किचन वी विल ट्राई टू चेंज। और ये भी बात आपकी सही है कि वो इजी रहता है, थोड़ा सुलभ किचन। तो एनीथिंग एल्स? हाँ, तो प्रसाद के टाइमिंग्स भी देख सकते हैं प्रो। कई बार ऐसा होता है ना कि सुबह का प्रसाद हम 11-12 बजे पा रहे हैं, और लंच फिर मतलब 3 बजे से लंच लेना है। तो तो आप लोग सजेशन दीजिए प्रभु। वी हैव दो ऑप्शन, ठीक है? हम्म हम्म सब भी हैं यहाँ पे, कई डिवोटीज हैं। कि हम अगर ऐसा करें कि वी हैव ब्रेकफास्ट बिफोर द क्लास। हम्म वन ऑप्शन इज दिस, लाइक माय पुणे टेम्पल वाले करते हैं। हम्म तो इनका भी 1000 डिवोटीज की यात्रा होती है। तो व्हाट दे डू प्रसादम ऑफ इन एट 8 o'clock. They give some rest to the devotees and then they have class from around 10 o'clock. हम्म। पर स्मॉल गैप देते हैं, बहुत लंबा गैप नहीं देते हैं मॉर्निंग में। तो 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं और 9:30 बजे टाइम देते हैं, 10 बजे से शुरू कर देते हैं अपना प्रोग्राम। वन ऑप्शन इज दिस, है ना? तो फिर क्या, लंच भी जल्दी हो सकता है। तो आफ्टर दिस क्लास दे हैव द लंच। उस तरीके से वो लोग चलते हैं। तो आप लोग भी बता सकते हैं। वन ऑप्शन इज दिस, द सेकंड ऑप्शन इज दिस कि लाइक प्रैक्टिकली प्रोजी लोग को ज्यादा समय चाहिए, है ना? और क्लास शुरू होते होते हम लोग का 7:30 हो जाता हम्म है ना? प्रैक्टिकली हम लोग 7, 7:15 का टाइम देते हैं, चैंटिंग भी करना होता है। तो 7:15 बजे का टाइम देते हैं, 7:30 बजे क्लास शुरू होती है। कभी कभी 10-15 मिनट और ऊपर हो जाए, है ना, कभी कभी। तो 7:30 बजे भी क्लास स्टार्ट होगा। अगर प्रभु जी लोग क्लास दे रहे हैं तो दे नीड एटलीस्ट 2.5 घंटा, है ना? 2.5 घंटे का मतलब है कि 10 बजे क्लास खत्म होगी। 10 बजे खत्म होगी, बच्चे वहां से जाएंगे गीता भवन, उनको 15-20 मिनट लगेगा पहुंचने में, है ना? तो 10:15, 10:30 प्रसाद हो रहे होते होते 11, 11:30 बज रहे हैं। तो एक ये सिस्टम है। दूसरा इसी में एक और है कि मॉर्निंग में प्रभु जी लोग का क्लास ही मत रखो, या तो उनका क्लास रखो बाद में। सुबह में जैसे जो स्पीकर्स हैं, जो 1 घंटा 1.5 घंटे में क्लास खत्म कर दे, जैसे आदिकर्ता को दे दिया, ये पितामह ऑप्शन को अच्छा दे है, दिया। ये साढ़े ऑप्शन सात अच्छा है। 7:30, 9 उनकी क्लास खत्म, है ना? जयन देव ब्रो, जी। हम है ना कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन रख सकते हैं ब्रो। मतलब कभी हमको थोड़ा सा वहां का थोड़ा हमको फील देना है तो उनको गुरु पूजा करवा दिया पूरा, और प्रसाद करवा के रेस्ट दे दिया। और कभी ऐसा कर सकते हैं कि मॉर्निंग में जो स्पीकर कम टाइम लेके खत्म कर देंगे, मैक्सिमम 8:30 बजे कर ही देंगे पक्का। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन काफी अच्छा रहेगा पूरा, इनका दोनों का कॉम्बिनेशन। मतलब मैं जस्ट बाकी ड्यूटी बता सकता हूँ। हम्म। हरे कृष्णा। जी इस प्रभु। बार परिक्रमा में नहीं जा रहे हैं क्या बाहर? क्योंकि उसमें पोस्टर में भी हर जगह लिखा है परिक्रमा पार्ट 2। तो बचे हुए जो 4 द्वीप हैं उनमें लेप करके भी जाएंगे ना बाहर? हाँ प्रभु जी। तो फिर तो इस बाहर बार निकलने का क्या? फर्स्ट बाहर हाफ में मैं जाएंगे? बताता हूँ। बाहर देखिए, बाहर एक बस से एक बार जाना है हमको। पिछली बार जैसे 2 बार बस से गए थे, तो इस बार हमें बस से एक बार जाना पड़ेगा। और एक बार नवद्वीप जाना है हमको, है ना? तो ये 2 बार में हमारा कवर हो जाएगा सब कंप्लीट। पहली बार कौन बस से कहाँ जाएंगे, कौन से द्वीप? वो है उधर, क्या बोलते हैं, द्वीप का नाम उसको नहीं याद आ रहा है, पर जगह मुझे पता है। माम गाछी जो है ना, उधर जाना है। और जिधर जो चैतन्य महाप्रभु के नाना नाना का घर है। जहाँ पे वृंदावन ठाकुर का भी घर है, और महाप्रभु ने वहां पे जहाँ शिक्षा भी ली थी, अच्छा, पाठशाला पाठशाला। पाठशाला, वो सब एक ही तरफ पड़ता है। तो वहाँ हमको जाना है।
और ये अंबिका कालना भी ले जाओ ना, बहुत अच्छी जगह है। नया चीज नहीं ऐड करना है, जो चल रहा है इसी में डिस्कशन करना है। तो अच्छा, एक दिन वहां बस से जाना होगा। और नवदीप तो फिर हम लोग हरि नाम करते हुए जैसे सुबह क्लास करके हाँ नवदीप इस तो हम तरीके। अपने सब चले जाएंगे। वो तो बस बोट पे बैठ के उस पार जाना रहेगा। हाँ और श्रीवास आंगन हम लोग हर बार जाते हैं, तो हम्म। वहाँ शाम को जाएंगे। मतलब ऐसा है तो ठीक है, उसी हिसाब से शेड्यूल बनाइए। थैंक यू। प्रसादम में समर्पित गौतम आप बता रहे हैं, एक तो सुलभ किचन हम प्रिफर करें। हम्म। और दूसरा हम बता रहे हैं कि सुबह का टाइमिंग ज्यादा लेट ना हो प्रसादम का, उस हिसाब से शेड्यूल मैनेज किया जाए, करेक्ट। 9 बजे तक ब्रेकफास्ट हो। यस। ओके। और कोई डिवोटी कुछ कहना चाहेंगे? एनीथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड? और कीर्तन रिगार्डिंग। मेला तो होगा नहीं, कीर्तन मेला तो हो पाएगा नहीं ना, क्योंकि हम तो पहले जा रहे हैं। नहीं नहीं, तो कीर्तन मिलन। हाँ, तो ऐसा कर सकते हैं ना, फिर अपने डीओटी जी का मतलब हम गुरु जी ही हम शाम को कीर्तन मेला अंदर ही कर लेना, कि मतलब उनके डीटीज के सामने, पंच तत्व डीटीज के सामने। ओके। हाँ ये हाँ हो सकता। काफी। हम्म। और कोई डिवोटी कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? राधापति चरण प्रभु का हाथ उठा है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। आप प्लीज बताएंगे, मैं एक्चुअली लैपटॉप से लॉग आउट हो गया हूँ, तो फोन आप प्लीज अपना माइक ऑफ करके बोल सकते हैं डायरेक्ट। तो वो ये शेड्यूल में ये एक सजेशन था कि हाँ हाँ। 7:30 तक मॉर्निंग प्रोग्राम करके, सेवन हम्म। थर्टी टू नाइन अगर 7:30 to 8:30 और 9 बजे तक ब्रेकफास्ट के बाद, 9 से 12 आप चाहो तो लेक्चर कर सकते हो। 3 घंटा बहुत सफिशिएंट होता है। और फिर 12 से 3 का गैप दे टू दी बस, और 3 बजे के बाद फिर परिक्रमा कर सकते हैं। तो मतलब आप बता रहे हैं कि 7:30 to 9 ब्रेकफास्ट एंड भी है। रीचिंग टू द क्लास डेस्टिनेशन। तो 9 से 12 क्लास रख दीजिए, 3 घंटा काफी होता है। क्लास करके फिर 12 बजे निकल जाए। 12 से 3 या 2:30 बजे तक का गैप, इसमें रेस्ट, क्लॉथ वॉशिंग, लंच और रीचिंग टू दी बस। 2:30 बजे बोलेंगे, 3 बजे तक आएंगे, 3 बजे से फिर अपना यात्रा शुरू हो जाए, 3 बजे से रात के 8 साढ़े 8 बजे तक, 5-6 घंटा। वैसे भी हम हर बार वहां से इतने वैसे ही निकलते थे लंच के बाद 2:30-3, या फिर लंच अगर वहां पर आ रहा है तो उसके हिसाब से फिर एडजस्ट कर लें। तो इसमें लेक्चर के लिए भी टाइम मिल जाता है। जैसे कई अदरवाइज में क्या होता है कि मॉर्निंग में ही घुमा देते हैं, ले जाते हैं 8 बजे से लेके 12 बजे तक, 12 से 2 लंच और रेस्ट दे देते हैं, 2 से या 3 बजे तक, फिर 3 से लेके 6 बजे तक, या फिर 4 से लेके 7 बजे तक लगातार 4 3 घंटे का लेक्चर रख देते हैं। क्योंकि लेक्चर हम्म। में ना 2.5 से 3 घंटा चाहिए होता है कीर्तन के साथ थोड़ा। यस यस। क्योंकि अगर यात्रा में नहीं सुनेंगे तो फिर कब सुनेंगे लड़के, तो मुश्किल हम्म से रजिस्टर आते हैं। तो अगर 7:30 बजे प्रसाद मिल जाए एग्जैक्ट, गुरु पूजा हम्म। फटाफट अटेंड करें, 7:30 बजे तक प्रसाद मिल जाएगा, 9 बजे तक अवेलेबल रहेगा। 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगा, 12 बजे तक चलेगी क्लास, 12 से 2:30 अपना रेस्ट रहेगा और क्लॉथ वॉशिंग रहेगा। फिर अपना लंच करके अपना बैठेंगे बस में और जहाँ जाना होगा जाएंगे। 9 से 12 वाली क्लास में सब सोते हैं, फिर खा पी के बढ़िया आएंगे ब्रेकफास्ट करके और क्लास में सोएंगे। हाँ, मतलब और ऐसे भी होता था ना, मायापुर जाते थे सुबह, तो सुबह निकल जाते थे, वहीं लीला स्थली पे ड्रामा, वहीं क्लास क्लास करते थे, वहीं प्रसाद करते थे। वो ज्यादा अच्छा रहता है कि लीला स्थली को भी हम मतलब व्यक्ति अच्छे से रियलाइज कर सकते हैं।
3 बजे शाम को निकलेंगे तो अंधेरा ही हो जाएगा जाते जाते ही। आएंगे, ज्यादा कुछ हो भी नहीं, बाहर तो कुछ नहीं कर पाएंगे, अंदर ही कहीं अगर कुछ हो पाया तो हो पाया। और आई ठंड भी होगी थिंक इस टाइम पे बाहर। जयवाम देपू शेड्यूल कोर कमेटी में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, अभी आप लोग खाली अपना सजेशंस दे सकते हैं, है वो ना? कोर कमेटी वाले ही सजेशन दे रहे हैं यहाँ पर, बाकी सब भी बोले तो हाँ, अच्छा रहेगा। तो हम एक उसी हिसाब से एक वर्कआउट करेंगे जैसे समरकीर गौर ने भी बताया है। तो वी विल वर्क आउट ऑन शेड्यूल एंड देन वी विल प्रेजेंट, है ना, बेस्ड ऑन योर सजेशंस आल्सो। एनीवन एल्स? तो चैट बॉक्स काफी भर गया है अभी तो। तो ये आप लोग जैसे शेड्यूल बनाएंगे हम लोग मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं, वन थिंग आई अंडरस्टैंड, ये जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बहुत लेट होता है एक्चुअली, तो वो हम लोग इस बार प्रयास करेंगे कि ऐसा ना हो, है ना। उससे हर तरीके से फिर तकलीफ होती है। जो वहाँ का मैनेजमेंट होता है उसे भी बहुत तकलीफ होती है, हमें भी बहुत तकलीफ होती है। अब बच्चों को तो थोड़ी हो तो बच्चों को भी होती है, रूल बना के दैट वी विल आल्सो टेक है। सो नाउ जो भी आपके आगे भी कुछ पॉइंट्स होंगे, तो अभी तो समय है यात्रा में 2 महीने का, तो वी विल टेक दैट। So now if you are ready now to take give the pledging for your areas or you need a time, the next week we can take, जैसे भी आप लोग। Yes, so do you want to give any pledging now or after in a week, है ना? तो जो ये कहना चाह रहे हैं कि हम नेक्स्ट वीक प्लेजिंग करेंगे, तो वह हैंड रेज कर सकते हैं। और जो एरियाज those who are comfortable in the next week, तो अभी आप लोग हैंड रेज करके ही रखें। तो जो एरियाज नेक्स्ट वीक देना चाहते हैं प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं, दोज हु वांट टाइम दे आर प्लेजिंग। मधुस्मिता पू, ठीक है। राधापति चरण को आप अभी देंगे, बताएंगे हाँ प्रभु, 50 डिवोटीज। फॉर विच यात्रा? मायापुर। पुरी के लिए भी है, पुरी के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा बस, क्योंकि हर बार मायापुर जाते हैं तो उसका तो क्लियर है। +- 5 का वो रखिएगा थोड़ा। ठीक है। पुरी के लिए समर पुरी के लिए लगभग हो सकता है कि मतलब अभी के लिए 10 है, बाकी मैं एक बार कंफर्म बताऊंगा नेक्स्ट वीक। ओके। समर्पित गौर प्रभु। मैं नेक्स्ट वीक ही बताऊंगा आपको। अच्छा, नाम आशय प्रभु। तो वो 25 से 30 कर सकते हैं मायापुर के लिए, और ज्यादा हो सकते हैं अभी के लिए तो 25-30 कर सकते हैं, और जगन्नाथपुरी के लिए 10 कर सकते हैं। तो नाम आशय प्रभु, आप थोड़ा और समय ले लो फिर, है ना, नेक्स्ट वीक आप क्लियर बता दीजिएगा, हाँ। ठीक अभी है, लिख तो लो ये, प्लेजिंग अगर बढ़ेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी जो प्लेजिंग मेरे पास आया था डिवोटिस से वो 25-30 तक ही आया था। ठीक है। बढ़ेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ओके। जय विलास। सरोजमुख माधवपुर नहीं है, मंगल हरिपुर नहीं है। अभी कई और डिवोटीज नहीं है प्रभु जी, तो ये सब डिटेल्स हम सबको पर्सनली भी शेयर कर देंगे। सो नेक्स्ट वीक वी विल हैव दिस प्लेजिंग मीटिंग, है ना। यस विलास प्रभु। लिख लीजिए। फैसिलिटेटर से मैंने पूछा था तो 74 है मायापुर, 24 प्लस पूरी,
और बोथ में 24। पूरी कितने हैं आपके? 24। ये 24 ना? मायापुर 74, पूरी 24, बोथ 15। ठीक है। बाकी कुछ चेंज होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान दे, मीटिंग। डिस्कशन नहीं ले रहे क्या? क्या चीज? मैसेज किया था आपको चैट में, एफटीपी वाला पीपीटी दिखाना था, फैसिलिटेटर अटेंडेंस। फैसिलिटेटर? एफटीपी वाला राम सर को बताए थे आपको, आज प्रेजेंट करना था। मुझे बताया नहीं कुछ। फैसिलिटेटर्स अटेंडेंस जो चौधरी ने बोला था ना कोर कमेटी मीटिंग में, कि फैसिलिटेटर जो एरिया से आ रहे हैं, राम सर को आप दिखा सकते हैं पीपीटी। ध्यान देखो क्या करें, अभी दिखाएं या? हाँ, दिखा दीजिए। तो बोला था उनको कि टाइम ले लेंगे। तो ये 5 मिनट का प्रेजेंटेशन है सभी एरिया लीडर्स। तो अभी जो है पूरे फैसिलिटेटर को हमने जो है दो ग्रुप में बांटा है, जो ब्रह्मचारी फैसिलिटेटर है और जो यूथ फैसिलिटेटर है। ब्रह्मचारी फैसिलिटेटर को फुल टाइम लिखे हुए हैं और यूथ फैसिलिटेटर को पार्ट टाइम ऐसा लिखे हैं। नेक्स्ट। तो टोटल जो है 83 फुल टाइम फैसिलिटेटर्स हैं सारे कोस्ट एरिया मिला के। और फुल टाइम डिवोटीज का सेशन जो है हम लोग ट्यूसडे रख रहे हैं आफ्टरनून में, ब्रह्मचारीज का 2 बजे से 4 बजे तक। और इसमें स्पीकर जो है मेनली असिस्टेंट डायरेक्टर्स रहेंगे। और नेक्स्ट। यश प्रभु जी, मैं एक चीज यहाँ पे आप बोल रहा था कि हम लोग ना ब्रह्मचारी जो क्लास होती है उसका टाइम भी फिक्स कर लें, नहीं तो ये फिर क्लैश ना हो ना। तो अविनाश मैडम जी, इस टाइम में फिर ना रखें कभी क्लास ना। नहीं, ऑल्टरनेट डे होगा ना, ब्रह्मचारी क्लास 15 दिन में एक बार होता है ना। हाँ, मतलब वो इस हिसाब से ही हो कि दोनों चीजें क्लैश ना हो। ठीक है। नहीं, ब्रह्मचारी क्लास तो हर हफ्ते होता है ना, 15 दिन में एक बार कहाँ होता है? ये मतलब चीज जब भी। ये चीज तो डिस्कस नहीं हुई है ना, ये कहाँ डिस्कस हुआ है कि ऐसे होगा? ये पार्ट कौन? टाइम फुल टाइम होगा, ऐसे क्लास होगा, ये कोर शेड्यूल कमेटी। रहेगा, ये कहीं डिस्कस हुआ है क्या? हाँ, क्या ये अभी कोर। प्लानिंग फेज में है या फिर मतलब इज इट फाइनलाइज और इज इट इन अ प्लानिंग फेज? ये कोर कमेटी में डिस्कस प्रेजेंट किया था लास्ट टू लास्ट वीक, और उसको सबने ओके कर दिया था, तभी यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं सारे एरिया लीडर्स। आई थिंक मुझे लगता है कि कोर कमिटी के भी MOM मिनट्स ऑफ मीटिंग शेयर होने चाहिए आफ्टर एवरी मीटिंग, बिकॉज इफ समबडी इज शेयर्ड है मिसिंग। प्रभु जी, हाँ, ऑलरेडी आप देखेंगे ये चीजें शेयर्ड हैं अच्छा, एक बार कि दो क्लास है। प्लीज एक बार मुझे टैग कर दीजिएगा, फिर से एक बार टैग कीजिए। ये डिस्कशन तो बहुत समय से चल रहा है। नहीं, बट आई एम नॉट श्योर। मैं प्रयास तो करता हूँ हर मीटिंग में रहने का, बट आई एम नॉट श्योर कि ये फुल तो टाइम की मीटिंग, फुल टाइम का क्लास होगा ट्यूसडे को, ये फाइनलाइज हुआ है। मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा। नहीं, ट्यूजडे व्यूजडे तो यहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं, बट ये कंसेप्ट डिस्कस हो गया था हाँ, नहीं, कि मुझे एफटीपी। याद है कि हाँ। पार्ट टाइम फुल ये टाइम। मैंने प्रेजेंट किया था लास्ट मीटिंग में। कोर कमेटी जब मीटिंग हुआ था उसमें मैंने प्रेजेंट किया था, तो उसमें ट्यूसडे का प्रेजेंट किए थे कि ट्यूसडे इतने बजे करेंगे। तो उसमें कोई किसी का कोई वो नहीं आया था इनपुट। तो जी तो आप ब्रह्मचारी क्लास देख लो, हम टाइमिंग अभी भी एडजस्ट कर सकते हैं। कर लेंगे सॉरी। हाँ, आपको लगता है कि ब्रह्मचारी क्लास इस टाइम पे हम करेंगे ट्यूसडे 2 से 4, तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, वही मैं कह रहा हूँ। राम सर ठीक है। को करेंगे आगे फिर सब। Yes, yes, for yes, FTP to हाँ,
और जो यूथ का है वो तो चल ही रहा है जैसे चल रहा है। नेक्स्ट। हाँ, तो ये जो है अभी एफटीपी क्लास में जो मेन अभी हम लोग फोकस प्रोजी ने बोला है वो है कि असेसमेंट्स देखना है। हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है उसको असेसमेंट्स करने के लिए हम फैसिलिटेटर्स को कुछ असाइनमेंट्स देंगे, और उनको जो है फिर सबमिट करना होगा नेक्स्ट एफटीपी तक। हर ट्रेनिंग सेशन के कुछ असेसमेंट्स होंगे और उसको हम उसका रिपोर्ट भी बनाएंगे। तो ये हम ऐड करने वाले हैं एफटीपी सेशंस में। और नेक्स्ट, अब ये जो है डिस्कशन पॉइंट है फैसिलिटेटर्स अटेंडेंस सिस्टम। तो फैसिलिटेटर्स का अटेंडेंस कैसे लिया जाए, है ना। और प्रभु जी का ये कहना था, प्रभु जी ने हम सबको कई बार बोल रखा है कि एरिया लीडर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि फैसिलिटेटर्स को एफटीपी ट्रेनिंग अटेंड कराना है। तो ऐसे तो सेंट्रली सिस्टम बना हुआ है अटेंडेंस का, लेकिन प्रभु जी चाहते हैं कि एरिया लीडर जो है इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले एफटीपी फैसिलिटेटर्स का अटेंडेंस लगाने का। तो अगर कोई फैसिलिटेटर्स नहीं आ रहा है एफटीपी क्लास में तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये एक डिस्कशन पॉइंट है। और ये कैसे इंश्योर करें कि फैसिलिटेटर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं क्लास एफटीपी क्लास में किसी एरिया से, इनको कैसे जो है हम लोग इंश्योर करें, ये 3 पॉइंट है डिस्कशन का। तो जयवान देखो, अगर आप कहेंगे तो हम नेक्स्ट मीटिंग में, क्योंकि अभी आई थिंक ये लेट हो गया है। हाँ, वीकेंड दिस जो डिस्कशन इनपुट्स लेना है वो नेक्स्ट मीटिंग में कर सकते हैं। बस हम कुछ स्लाइड्स थ्रो कर देते हैं ताकि हाँ, आप। यस यस। और हर एरिया फैसिलिटी, हमारा एक सजेशन था कि एरिया लीडर्स तो थोड़े एंगेज रहते हैं, तो फैसिलिटेटर कोऑर्डिनेटर दे सकते हैं जिनके थ्रू हम इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आंसर। तो उसमें कुछ जो है वो एरिया लीडर्स और उसको कर सकते हैं। तो मेन यही है कि हम लोग जो है दो चीज पे हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। एक तो फाइनल हम प्रेजेंट कर देंगे अरविंद दास महापुर से कोऑर्डिनेट करके कि ब्रह्मचारी का फैसिलिटेटर्स फैसिलिटेटर्स ब्रह्मचारी फैसिलिटेटर्स का क्लास कब हो सकता है। और दूसरा कि है ना, अटेंडेंस सिस्टम एरिया लीडर्स कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर सकते हैं फैसिलिटेटर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कराने में। ये दो चीज़ जो है हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू आप सभी भक्तों का। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा एक्सटेंड हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का धन्यवाद आने के लिए। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।